Hello dear students, how are you all? Welcome back to my channel Educational Corner. As you are aware that we are doing chapter 11 Nature's Treasure, and today we will be doing its important point. We have already covered this chapter in three parts: part 1, part 2 and part 3 explanation and summary and question answers. Today we'll proceed further with important points. As I have already told you that nature has given us some of the treasure which we have read in this lesson. These were air, water, sunlight, forest, soil, rocks, mineral and fossil fuels and the natural resources. Today we'll proceed with the important points. These points are important for the exam purpose also. So please go through all the points and watch the video till end. The air and the soil supports a variety of living beings. Different varieties of trees provide food and shelter to animals, including various birds and insects. So air and soil, these support variety of living beings. Air और soil बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये living beings को जो है variety of living beings को support करती है. Different variety of trees provide trees क्या provide करते हैं? Food and shelter to animals, including various birds and insects. We need the nature's treasure for our survival and for making our life comfortable. Nature के जो treasure हमें जो provide करे हैं, air, water, sunlight, forest, then soil, rocks, mineral, fossil fuels, ये सारे treasure जो हैं ये हमारे survival के लिए बहुत ही ज़्यादा important है और ये हमारी life को comfortable बनाते हैं. We need oxygen for our survival. हमें क्या चाहिए? Oxygen चाहिए survival के लिए. Okay? Air is required, oxygen is required for our survival. We can survive without food or water for few days, but we cannot survive without oxygen for even few minutes. So food and water के बिना हम फिर few days तक survive कर सकते हैं, but not without oxygen. The air which surrounds the earth is a mixture of gases. एयर जो अर्थ के आसपास है, एटमॉस्फेयर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. So our earth is surrounded by air and it consists of mixture of gases. Air contains nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and other gases in small quantities. Composition of air, this is important. Oxygen कितना है, nitrogen कितना है, argon, carbon dioxide and other gases. Nitrogen is 78%, oxygen 21%, then argon, carbon dioxide and other gases are 1% in the atmosphere. Moving air is called wind. Wind rotates the wing of the windmill. If you have seen a windmill जो है वो कैसे rotate करता है, उसके जो wings हैं वो wind जो है उसको rotate करती है. Windmill can be used to run floor mills. So windmill is used to run floor mills to pull up water from well or to generate electricity. तो ये lesson जब read किया था तब भी बताया था कि windmill जो है वो क्या हेल्प करते हैं. एक तो फ्लोर मिल्स, जो आटे की जो मिल्स होती हैं वो उसमें हेल्प करते हैं. देन वाटर वेल में से निकालने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. A windmill farm is an area that has a large number of windmills which use the energy of wind to generate electricity. Windmill farm क्या है? Windmill farm एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे windmill हमें नजर आते हैं और वहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज होती है? विंड एनर्जी यूज होती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. Mupandal wind farm in Tamil Nadu, Jaisalmer wind park in Rajasthan and Brahmaville wind farm in Maharashtra are some of the leading wind farms in our country. तो इंडिया में ये तीन जो है ये इम्पोर्टेंट है ये विंड फार्म्स हैं. मुपंडल विंड फार्म तमिलनाडु में, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान एंड ब्रह्मनवेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र. Okay.
वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ का जो सरफेस है उसमें 2/3 जो है वो वाटर है. मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन ओशन एंड सी. ओशन एंड सी का मैंने बताया भी था कि ओशन एंड सी में जो वाटर होता है दैट इज सेलाइन एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. So for the activities, other activities and for drinking purpose we require fresh water. और फ्रेश वाटर कहाँ पर है? फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आइस शीट्स और स्नो, रिवर और लेक्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड अंडरग्राउंड. तो फ्रेश वाटर कहाँ अवेलेबल है? आइस शीट में, स्नो, रिवर, लेक एंड अंडरग्राउंड. Uses of water: we need water for drinking, cooking, bathing, washing and cleaning. It is also used for growing crops and for industrial purposes. So water is used for drinking, cooking, bathing, washing and cleaning, and for growing crops and as well as for industrial purposes, used by industries also. It is used by farmers also for irrigation, for growing crops, and it is used in industries also. There are many ways to reduce wastage of water. How can we reduce? By turning off tap when we are not using it. Then fixing water leakages if there is any leakage in the pipe or tap. Then recycling water and water harvesting is also used in order to save water. वाटर को सेव करने के लिए, रिड्यूस वेस्टेज रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो टर्न ऑफ द टैप, ठीक है, एंड सेकेंड इज फिक्सिंग दी वाटर लीकेजेस. और वाटर सेव करने के लिए हम कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड recycling of water, means the water can be used again and again. We pollute fresh water sources by throwing trash, waste material in them. Waste from homes and industries pollute our water resources when it is dumped into them. So हम कैसे वाटर फ्रेश वाटर सोर्सेज को हम कैसे पोल्यूट करते हैं? उसमें ट्रैश वेस्ट मटेरियल थ्रो करके, लाइक पॉलीथिन्स, then we throw other things into water and we pollute the water. Waste from home, हमारे जो घर से जो वेस्ट होता है और इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो भी जो है वो वाटर को पोल्यूट करता है. Polluted water is not fit for consumption by living beings. It is important for us to conserve water and use it judicially. तो जो ये पोल्यूटेड वाटर है ये हमारे पीने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता. वी कैन नॉट यूज दिस वाटर फॉर एनीथिंग. So we should not pollute it and we should conserve it, rather save it and use it judicially in proper way. वाटर हार्वेस्टिंग. वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? वाटर कंजर्व करने के लिए एक मेथड है. इन मेनी बिल्डिंग्स रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. ठीक है, रेन वाटर को एक बड़ी 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 जो बिल्डिंग्स होती है वहां पर रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और फिर उनको लार्ज क्वांटिटी में स्टोर किया जाता है आगे के यूज के लिए, जिसे बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. For example, step wells, commonly known as Bawari in Rajasthan and Vav in Gujarat, are built for water harvesting. World Water Day is observed on 22nd March every year. Okay? तो स्टेप वेल्स बड़े बड़े जो डीप होल करके उसमें वाटर को सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है आगे के लिए यूज करने के लिए. तो ऐसे ही जो राजस्थान में उसका नाम बवाड़ी है और जो गुजरात में उसका नाम वाव है. और वाटर डे जो है, वर्ल्ड वाटर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 22nd मार्च एवरी ईयर. इस दिन हमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पता चलती है. वर्ल्ड वाटर डे क्या है कि वाटर को किस तरह से सेव करना है, जुडिशली कैसे यूज करना है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. The sun is the main source of energy on earth. Sunlight helps plants prepare food. The sun also provides all living beings on earth with heat and light. It is the main source of energy. तो sun जो है वो हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का. और सनलाइट क्या हेल्प करती है? प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करती है और सबको हीट, सन जो है हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है अर्थ को. The solar panels capture the sun energy and produce electricity. So solar panels जो है वो कैसे वर्क करते हैं? सन एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस होती है. एनर्जी फ्रॉम सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर कुकिंग इन सोलर कुकर. सोलर कुकर में जो सन की जो एनर्जी है उसको ट्रैप कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है और फिर उसमें कुकिंग की जा सकती है. और हीटिंग वाटर इन सोलर वाटर हीटर.
और वाटर को हीट किया जाता है सोलर वाटर हीटर। Forests are natural home for many wildlife including birds and insects. Forests provide food and shelter to them. So forest जो है ये हमारा नेचर का एक ट्रेजर है, जो एक नेचुरल होम है किसके लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए। और ये फूड एंड शेल्टर, फूड और जो है वो घर प्रोवाइड करता है बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को। We must preserve and use forests responsibly so that they get enough time to regenerate. Okay, तो हमें इनको प्रिजर्व करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रॉपरली यूज करना चाहिए, ना कि ट्रीज को कट करना चाहिए, क्योंकि इसको अगर हमें दोबारा करना पड़ेगा रीजनरेट, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। One Mahotsav is a week-long event celebrated across the country during the month of July to increase the green cover. तो वन महोत्सव क्या है, एक पूरा वीक हम सेलिब्रेट करते हैं जुलाई के मंथ में, ताकि हम फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर सकें, ग्रीन कवर या प्लांट्स को ग्रो कर सकें और प्लांट कर सकें। The Chipko movement started in 1970s in Uttarakhand, where local women encircled and hugged the trees to protect them from being felled. तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1970s में उत्तराखंड में, जहाँ पर लोकल वुमेन, सम ऑफ द चिल्ड्रन, दे इनसर्कल्ड, उन्होंने क्या किया था, ट्रीज के आसपास सर्कल बना लिया था और ट्रीज को हक कर लिया था ताकि उनको काटा ना जा सके। Soil is formed by breaking up of rocks by the action of sun, water and लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सॉइल की डेफिनेशन है ये। सॉइल क्या है, सॉइल इज फॉर्म, सॉइल कैसे फॉर्म होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, रॉक के ब्रेकिंग अप में जब पत्थरों को तोड़ा जाता है, रॉक्स को तोड़ा जाता है, किस एक्शन से, सन, वाटर या लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रॉक्स आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग, टेम्पल्स, रोड्स, डैम्स एंड टेबल टॉप। रॉक्स को हम किस लिए यूज करते हैं, हाउस की कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में, टेम्पल बनाने में, रोड बनाने में, डैम बनाने में और टेबल टॉप्स बनाने में। सो रॉक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग, टेम्पल्स, रोड्स, डैम्स एंड टेबल टॉप्स। सम रॉक्स लाइक स्लेट आर यूज्ड फॉर रूफिंग। आपको बताया था रूफिंग क्या होती है, रूफ होती है ऊपर की छत के लिए जो रॉक्स यूज होते हैं, जैसे कि स्लेट। लैटराइट कैन बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल लाइक ब्रिक्स। लैटराइट से क्या बनती है, लैटराइट रॉक से ब्रिक्स बनती हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉक्स आर ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल। Human beings have been using rocks to make tools such as hand axes and arrowheads. Human beings जो हैं वो rocks को किस लिए यूज करते हैं, टूल्स बनाने के लिए, जैसे हैंड एक्स बनाने के लिए और arrowheads बनाने के लिए। Rocks are made up of mineral. This is important. Rocks किससे बनते हैं, minerals से। Important metals such as aluminium, gold, copper and iron are extracted from minerals. तो एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, आयरन ये किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये मिनरल से बनाए जाते हैं। ओके, minerals are used in manufacturing of airplanes, cars, jewelry, cosmetic and electrical and electronic equipment. Minerals को किस लिए यूज किया जाता है, एयरप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कार्स के लिए और ज्वेलरी बनाने के लिए, कॉस्मेटिक बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने के लिए। पेट्रोलियम along with natural gas and coal are commonly called fossil fuel. फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं हम, फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम जब नेचुरल गैस और कोल के साथ, इनको बोलते हैं हम फॉसिल फ्यूल। दे आर फॉर्म्ड एसेंशियली, कैसे बनते हैं ये, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स दैट गॉट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ एंड वर कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, उनके जो रिमेन्स रह जाते हैं, उनको जब नीचे डीप सॉइल में बरी कर दिया जाता है इनसाइड द अर्थ, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल में। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से क्या बनता है, और पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, एंड दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, so it is not easy to form the fossil fuels, so we should use them judicially.
गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. जो नेचुरल गैस है वो कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हेल्प करती है. Nowadays compressed natural gas CNG is used as a vehicle the fuel for vehicles में CNG डलती है, that is compressed natural gas. और अगर हम इसे पेट्रोल और डीजल से कंपेयर करें तो ये इट इज अ क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल और डीजल. ये उससे क्लीन है, क्लीन फ्यूल है पेट्रोल और डीजल से CNG. Coal is mainly used for production of electricity. So in our country, India, we use coal for the production of electricity. Okay. So coal is used for the production of electricity in our country. Earlier coal, wood and cow dung were used as fuel for cooking. पहले के टाइम में कोल, वुड, काउ डंग जो थे, ये डंग केक्स, ये सब यूज किए जाते थे कुकिंग के लिए. बट नाउ अडेज अब क्या यूज किया जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज LPG. LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एंड लेस पोल्यूटिंग नेचुरल गैस इज बीन रिप्लेस्ड बाय कोल, वुड एंड डंग केक्स. इनकी जगह अब LPG और नेचुरल गैस को यूज किया जाता है बिकॉज ये लेस पोल्यूटिंग है एंड दे आर क्लीनर देन कोल, वुड एंड डंग केक्स. क्योंकि कोल, वुड और डंग केक जब बर्न किए जाते हैं तो इसमें से काफी स्मोक प्रोड्यूस होता है जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है. Smoke and carbon dioxide gas are produced which pollutes the air when fossil fuel are burned. हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल, डीजल, ये जब भी हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को तो स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसे पोल्यूट करती है एंड इट कॉजेज एयर पोल्यूशन. द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जो नेचर से हमें मिलते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल एक्सेट्रा. तो जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, नेचर से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, वो है एयर, वाटर एंड सॉइल. दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. द रिसोर्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर हो गया, तो ये मशीन्स हो गई, ये सब चीज़ें ह्यूमन ने बनाई हैं, तो दीज आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज को यहाँ पे 2 पार्ट्स में बांट दिया. एक तो नेचर जो प्रोवाइड करता है, दीज आर नेचुरल, एंड ह्यूमन मेड जो क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नाउ natural resources is divided into 2 parts, non-renewable and renewable resource. So the resources which can be renewed, replenished or restored within a reasonable period of time. एक reasonable period of time में renew हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं renewable resources. और पहले भी बताया था आपको renewable, re मतलब दोबारा से, new हो सकते हैं. Air, water and forest are some of the example of renewable natural resource. तो रिसोर्सेज जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, जैसे एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट. द अदर वन इज द रिसोर्सेज विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड और replenished within a reasonable period of time are called non renewable resources. नॉन का मतलब है नहीं, रीन्यूएबल, री मतलब अगेन, न्यू दोबारा से नए नहीं हो सकते, जो वो कौन से हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा से नहीं प्रोड्यूस हो सकते या रिन्यू हो सकते एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में, उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. दीज आर एग्जाम्पल, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर मिनरल्स, सॉइल, रॉक्स, coal, petroleum and natural gas. They will take million of year if they will get exhausted. अगर ये खत्म हो जाएंगे तो they will take million of year to form. तो इसीलिए हम इन्हें non renewable बोलते हैं. Okay, so natural resources are divided into 2 parts: renewable resources, renewable natural resource and non renewable natural resource. renewable कौन से हैं? जो renew हो सकते हैं एक limited period of time में, reasonable period of time में, और non renewable वो हैं जो renew नहीं हो सकते एक reasonable period of time में. तो ये difference है और these are very important, both of them are important with the definition and example. We must conserve our natural resources and use them responsibly without wasting them. तो हमें इनको
कंजर्व करना है, सेव करके रखना है नेचुरल रिसोर्सेज को, और रिस्पॉन्सिबली यूज करना है विदाउट वेस्टिंग देम. We have come to the end of the important points. I hope all these important points will help you at the time of your exams. Thanks for watching my video. Kindly like and share my videos and subscribe my channel. So I'll meet you soon with the last lesson of our curiosity book. So see you all. Take good care. Goodbye.